भारत सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से गर्व से कहो ये स्वदेशी है नारे के साथ 27 सितंबर को स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से उड़ीसा के झारसुगुड़ा में किया जाएगा। इस अवसर पर असम टेलीकॉम सर्कल के तत्वाधान में पान बाजार BSNL भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको असम टेलीकॉम सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक A.K. झा ने संबोधन किया। इससे पहले महाप्रबंधक ने महान गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत उनकी उपलब्धि और अवदानों के साथ किया तथा सभी ने 1 मिनट खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि दी। महाप्रबंधक A.K. झा ने पत्रकारों को बताया कि BSNL द्वारा देश का अपना नेटवर्क स्वदेशी 4G युग में प्रवेश कर रहा है। अपने रजत जयंती वर्ष में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL TCS तेजस एकीकरण के साथ स्वदेशी C.Core पर अखिल भारतीय 4G सेवा शुरू कर रहा है, जो रणनीतिक दूरसंचार के लिए भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। भारत के प्रधानमंत्री 27 सितंबर को झारसुगुड़ा, उड़ीसा में इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 4G संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत 14,000 से अधिक साइटों सहित 92,633 नई 4G साइटों का उद्घाटन किया जा रहा है। यह उपलब्धि मोबाइल एक्सेस, ग्रामीण फाइबर, भारतनेट और द्वीपीय कनेक्टिविटी CNI केलाई में बहुवर्षीय आधुनिकीकरण का समापन है। महाप्रबंधक ने आगे बताया कि 2022 में BBNL व BSNL विलय को मंजूरी मिलने के साथ भारतनेट रोलआउट और O&M पैमाने और गति के लिए एक ही छत के नीचे होंगे। पुनरुद्धार की गति, क्रमिक कैबिनेट पैकेज स्पेक्ट्रम, VRSAGR युक्तिकरण और 4G, 5G और ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए पूंजी पर ध्यान दिया गया। BSNL ने लगभग 18 वर्षों में पहली बार लगातार 2 तिमाही लाभ दर्ज किया। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपये, 1 करोड़ से अधिक 4G ग्राहक जोड़े और वित्त वर्ष 2025 के EBITDA में तेज सुधार के साथ साथ अपने ARPU में भी सुधार किया। As we all know that BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, under the guidance of the Department of Telecommunication, Government of India, is playing a key role in transforming the digital infrastructure of the country. In the line with the vision of the Honorable Prime Minister, Digital India Mission and Atmanirbhar Bharat, BSNL has been actively working to extend 4G coverage to even the remotest corners of Assam, ensuring affordability and accessibility communication to all. The purpose of the press briefing is, today's press briefing will shed light on the upcoming inauguration ceremony, where multiple 4G sites as part of the telecom saturation program. We'll hear from key officers about the progress made, the challenges overcome, and the way forward in the ambitious connectivity drive. His good works and all his achievements will keep on resonating in our mind for a very long time. Much. I told him that for that you need to come here and feel the pulse, feel the atmosphere and feel the air in which we are living, and he was a part of us. So he was not just merely a singer as we know about him, rather he was the king of the song of life. That is tomorrow, that is a great occasion for all of us, because we will be launching, Honorable Prime Minister will be launching the 4G project, which has been completed using totally our indigenous technologies. So I will tell you something about that project. I will also tell you something about the impact that this project has on the lives of people, and particularly in Assam, where we have a lot of hilly areas, tough terrains and everything. But before that, I would like to request all of you, all my press friends, that you please give it a wide publicity through your channel, that tomorrow is a launching day, and tomorrow we have to assemble at Kalakshetra Auditorium venue by 9:15 latest, not later than that. If you can give this message, we will be grateful to you.
we are looking forward to a big number of people there, and through words of paper, whatever goes, it will help the people to come there. So some of the people who have not been able to make it to today's press briefing, if they get this message also, same request goes to them who are not over here, but they may get this message. So that is my request. So the program tomorrow, first I will talk about that part. So program tomorrow at our place will likely to start at 9:45, and from 9:45 till around 11, that is 1 hour and 15 minutes, it will be our program in Assam. So in that program, BSNL will be launching some of the products, some of the plans, and some other things which will come on the way that we will witness. There will also be a speech by Honorable CM Assam, Honorable MOC. So they will have their speech. And after that speech, so there were initially some problems of integration which were finally resolved mostly, and now it is getting more and more smooth with every day of passage. So as we are looking forward to this occasion for this release and inauguration, we cannot forget the deep impact that it has left or going to give on the remote and hilly areas, and those areas also where there was no service. So that type of those areas where there was no service earlier, there this project called 4G saturation project was launched, which went in a very green manner. So now these places are well connected over the mobile network, and they are able to communicate. By green network, that means solar panels have been introduced, and they are the source of supply now for most of these sites, thereby reducing the dependence on diesel and other things. आप जो है अपने चैनल और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को अपील करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आए, 9:15 तक जो है वो पहुँच जाएं, और उस वक्त से लेके ये प्रोग्राम लगभग 12:15 तक चलेगा। तो लगभग 3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। उसके जो पहले लगभग 1-1.5 घंटे का वक्त रहेगा, उसमें हमारा लोकल प्रोग्राम होगा, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ पे उसका उद्घाटन करेंगे, और साथ में जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंत बिस्वा शर्मा साहब रहेंगे। तो जो हमारे लोकल प्रोग्राम यहाँ पे होंगे, उसमें तरह तरह के BSNL के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, और उसके बाद जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है, जो कि उड़ीसा से लाइव ब्रॉडकास्ट होता रहेगा, उससे हम जुड़ जाएंगे, और वो प्रोग्राम चलेगा। जब उसके बाद हमारे जो गांव-गांव से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो आएंगे, उनके साथ ऑनरेबल MOC का इंटरेक्शन रहेगा। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रोग्राम है लगभग 12:30 तक चलेगा। तो आपसे मेरी अपील है कि आप खुद भी आएँ, और भी जो प्रेस के मित्र हैं उनको भी लेके आएँ, क्योंकि ये हम लोगों के लिए हिस्टोरिक ओकेज़न है, और लार्ज स्केल पे और बड़े दिल से हम लोग आपका भी स्वागत करते हैं। जो जनता आएगी उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, और जो डिग्निटरीज़ का भी स्वागत करते हैं। तो ये हम सब मिलके इसको एक फ्रूटफुल और बेनिफिशियल टू ईच अदर ये बना दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी जो है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, और उसी के साथ में जो है साइमल्टेनियस उसी के साथ ऑनरेबल MOC भी यहाँ से उसको लॉन्च करेंगे आसाम से। और आसाम में जो है इसमें से लगभग हमारे 2000 टावर्स लग चुके हैं, जिससे कि हमारे रूरल एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में और जिस एरियाज़ में हम पहुँच नहीं सकते थे उन सब में जो है ये सर्विस लोगों को मिली है। तो ये
जैसा आपके ब्रीफ में पूछे तो ये है, यही हमारा उद्घाटन होने वाला है। इंडिया ने ये डिसाइड किया, BSNL ने ये डिसाइड किया कि हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, और जब इस नेटवर्क को बनाने की बात आई तो जो हमें सहयोग किया उसमें DOT के और BSNL के, उसमें C.DOT ने उसका कोर और TCS ने उसका कोर डेवलप किया, C.DOT की जो है सॉफ्टवेयर ली गई, और इस तरह से पूरे कोर जब इसका बन गया 4G का, उसके बाद RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क पार्ट के सप्लाई के लिए जो है MS तेजस को लिया गया और उन्होंने पूरा रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाया। यानी आसाम यानी गुवाहाटी में इसी कार्यक्रम होगा क्या कल से? हाँ, कल जो कार्यक्रम होंगे वो सबको आप लोग अपने चैनल के माध्यम से अपील करें कि 9:15 बजे तक, 9:15 तक कला क्षेत्र ऑडिटोरियम के बगल में जो हमारा वेन्यू है वहाँ पे सब लोग आ जाएं और वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करें। वहाँ पे सबसे पहले ऑनरेबल MOC जो हमारे दिल्ली से आ रहे हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके थ्रू वो सब कार्यक्रम होगा लगभग 1.5 घंटे का, और उसके बाद हम लोग जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम लाइव चलेगा उड़ीसा से, उससे हम लोग जुड़ जाएंगे वर्चुअली, और वो फिर चलता रहेगा। और उसके बाद जो लोग गांव-गांव से यहाँ आए हैं, जो बेनिफिशियरी है, जिनको कि इस 4G प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिला, वो कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे उनका इंटरेक्शन होगा ऑनरेबल MOC का, और तब ये प्रोग्राम लगभग 12:30 बजे में जाके कंप्लीट होगा। असम में जो अभी हमने टावर जो हम उद्घाटन करवा रहे हैं वो 2000 टावर्स हैं हमारे, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो 27 लाख है, 29 लाख कस्टमर्स हमारे हैं मोबाइल के असम में हैं।